زنجیر کے آنے والی ایپیسوڈ مزید سسپینس سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ جس طرح تورسم خان نے اپنے ماما کے سامنے اپنی مردہ ماں کی قسم کھائی ہے کہ میں اپنی مردہ ماں کی قسم کھاتا ہوں ماما جان کہ میں اپنے بڑے بھائی سوتیلے بھائی شیر خان کو نہیں چھوڑوں گا، اور اسی طرح اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں تب تک سکھ کا سانس نہیں لوں گا جب تک میں اپنی بے عزتی کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور وہ اپنے ماما سے کہتا ہے کہ میرے دماغ کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے اور مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ واقعہ بار بار میرے دماغ میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے جب پورے گاؤں کے مشران میز پر بیٹھے ہوئے تھے اور مجھ پر باتیں چاڑ کر رہے تھے، اور اسی وقت میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ ان سے معافی مانگی جائے۔ آپ بتائیں ماما، کیا وہ ایسا کرتا؟ دوسری طرف ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کا ماما خود اس کے بھائیوں کے خلاف تھا، اور اسی کے ساتھ وہ اس سے کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں وہاں اپنی مردانگی جگانی چاہیے تھی۔ کیا تم وہاں پر انہیں منع نہیں کر سکتے تھے؟ اسی کے ساتھ اس کا ماما اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں غصہ آتا بھی ہے تو وہاں جا کر دکھاؤ، یہاں عورتوں کی طرح بار بار باتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ سن کر تورسم خان کا پارا مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ غصے سے آگے کی طرف بڑھتا ہے اور ماما سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ماما، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ مجھے کتنا غصہ آیا ہوا ہے، اور آپ بار بار ان کا نام لے کر میرے غصے کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ چپ ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں۔ اس کا ماما اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ میں تو چپ ہو جاؤں گا، کیا وہ لوگ چپ ہو جائیں گے جن کے سامنے تمہارے بھائی نے تمہیں ذلیل کیا ہے، ان کے سامنے تمہیں تھپڑ رسید کیا ہے؟ کیا وہ لمحہ تمہارے دماغ سے بھول جائے گا؟ کیا وہ لوگ یہ واقعہ بھلا دیں گے؟ نہیں، ساری زندگی تمہیں وہ لوگ یہ تانا دیں گے کہ تم سے ان لوگوں سے معافی منگوائی گئی ہے جو کہ ساری عمر تمہارے والد کے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہیں۔ کیا یہ بات تم برداشت کر پاؤ گے؟ میں تو چپ کر جاؤں گا۔ ویسے بھی مجھے تمہارے بھائیوں نے کمزور کہہ دیا ہے، لاغر کہہ دیا ہے، اور تمہاری مری ہوئی ماں کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وہ تمہارے سوتیلے بھائی تو ہیں، لیکن تمہیں بھائی کہتے ہیں، لیکن ہیں تمہارے سب سے بڑے دشمن۔ یہاں تورسم خان یہ قسم کھاتا ہے اور اپنے ماما سے کہتا ہے کہ ماما جان، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور اس بار پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ قسم کھاتا ہوں، اور یہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے سوتیلے بھائی سے اس بات کا بدلہ ضرور لوں گا۔ شیر دل جب تک میرے پنجے میں نہیں آ جاتا تب تک میں سکھ کا سانس نہیں لوں گا۔ اسی کے ساتھ یہ تمام باتیں وہ اپنے ماما سے کہہ کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، اور پیچھے اس کا ماما کہتا ہے کہ ہاں، کئی دہائیوں سے میں خاموش رہا ہوں، اور یہ خاموشی شیر دل کے خاندان والے یا آغا کے خاندان والے سمجھتے ہیں کہ میں بزدل ہوں، لیکن میں وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اب انہی کا خون انہیں کاٹے گا، انہیں معلوم ہوگا کہ میرے ساتھ دشمنی کرنا کیسا ہے۔ انہوں نے میرے خاندان کو برباد کیا تھا، میرے گھر والوں کو انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے مجبوراً اپنا آبائی گاؤں چھوڑنا پڑا، کیونکہ لوگ تان دان مجھے دے کر جینا، انہوں نے مجھے جینا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جہاں تورسم خان اپنے آدمیوں کے ساتھ اپنے ماما کے ڈیرے پر موجود ہوتا ہے۔ گہری رات کا منظر ہوتا ہے،
यहाँ तोरसब खान कुछ देर के लिए तो खामोश रहता है और अपने आदमियों की तरफ मुसलसल देखे जा रहा होता है, और उसके आदमी भी उसके हुक्म का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब तोरसम खान हमें बताएगा और हम इसके हुक्म पर अमल करेंगे। यहाँ हम आपको बताते चले कि ये आदमी इसके मामा के होते हैं, और इसके मामा ने अपने तमाम आदमियों से कहा हुआ था कि तोरसम खान तुम्हें जहां भी कहे तुम लोगों ने जाना है। तोरसम खान को तुमने मना नहीं करना, क्योंकि इसका मामा जानता है कि अब बदले का यही वक्त है। अगर आगा के बेटों से बदला लेना है तो यही सही वक्त है, क्योंकि उसका भांजा यानी कि शेरदिल खान का जो सोतेला भाई था वो तोरसम था, और तोरसम इसे मामा का भांजा था। इसी वजह से मामा ने अपने तमाम आदमियों से कहा हुआ था कि तोरसम खान तुम लोगों को जिस बात का भी हुक्म दे तुम लोगों ने कबूल करना है। और उसने ये बात अपने आदमियों से इस वजह से कही थी क्योंकि अब तोरसम खान का गुस्सा आसमान को छू रहा था, और उसने अपने मामा के सामने ये अपनी मुर्दा माँ की कसम भी खाई हुई थी कि तब तक वो सुख का सांस नहीं लेगा जब तक अपने सोतेले भाइयों को मौत के घाट ना उतार दे। और इसी तरह वो अपने मामा से मुखातिब होकर कहता है। बहरहाल अपने आदमियों से वो कहता है कि मुझे ज़राए से मालूम हुआ है कि कल शेरदिल खान हमारे गांव से होकर गुजरेगा, और मैं चाहता हूं कि कल शेरदिल खान का हमारे गांव से जैसे ही गुजर हो तो उसका काम तमाम कर देना चाहिए। ये सुनकर उसके आदमी तोरसम खान से कहेंगे कि तोरसम खान, क्या खबर पक्की है? सराय ने तुम्हें खबर पक्की ही दी है ना? ऐसा ना हो कि हम उस काफले पर हमला करें और उस काफले में कोई और मौजूद हो, और एक बार फिर जिस तरह हमने पिछली बार तोरसम खान आपके हुक्म पर शेरदिल खान की फसलों को नुकसान पहुंचाया था, तो हमारे कुछ आदमी शेरदिल खान के पंजे में जकड़े हुए थे, और तुम्हारे मामा ने उन आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। क्या इस बार खबर पक्की है ना? क्योंकि इस बार हमारे खून में अब सब्र नामी मादा खत्म हो चुका है। अब हम शेरदिल खान से बदला लेना चाहते हैं। अगर इस बार खबर पक्की ना हुई तो शेरदिल खान हमारे तमाम कबीलों को जलाकर राख कर देगा, और ये मौका हम अपने हाथ से हरगिज जाने नहीं देंगे। हम उस पर ऐसे ताबड़तोड़ हमला करेंगे कि शेरदिल खान सुबह का सूरज तो देखेगा लेकिन डूबता हुआ सूरज नहीं देखेगा। इसी के साथ तोरसम खान अपने आदमियों से कहता है कि इस बार खबर मजबूत खबर है। मुझे मालूम हुआ है कि शेरदिल खान कल हमारे गांव से होकर गुजरेगा, और इस बात का हमने फायदा उठाना है। उसे हमने मौत के घाट उतारना है। तुम लोगों ने तब तक पीछे नहीं हटना जब तक कि ये बात कन्फर्म ना हो जाए कि शेरदिल खान मर चुका है। हाँ, मेरी ये बात याद रखना। तब तक तुम लोगों ने उस पर हमला, ताबड़तोड़ हमला जारी रखना है। ये सुनकर उन आदमियों में से एक आदमी शेरदिल खान का नहीं बल्कि तोरसम खान से मुखातिब होकर कहता है कि तोरसम खान, तुम्हें परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। तुम्हारे आदमियों के बाजुओं में अभी इतनी ताकत मौजूद है कि शेरदिल खान पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा, और शेरदिल खान का काफिला तब पीछे हटने पर मजबूर होगा जब तुम्हारे आदमी शेरदिल खान को मौत के घाट उतार देंगे। ये बात तुम याद रखना, ये बात मत भूलना तोरसम खान कि तुम्हारे मामा के आदमी तब तक अपने दुश्मन को नहीं छोड़ते जब तक दुश्मन की जान से सांस ना निकल जाए। ये बात तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, और पिछले हमले में हमने तुम्हारे साथ वफादारी दिखाई है।
بس اس بار ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم شیر دل خان کے قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو خبر پکی ہونی چاہیے کہ اس قافلے میں شیر دل خان بھی موجود ہوگا۔ ہماری لاشیں چاہے ہمارے گھر والوں تک پہنچا دی جائیں، شیر دل خان ہمارے ٹکڑے کر دے، لیکن تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم شیر دل خان کو موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ یہ خبر سن کر تورسم خان آگے کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے آدمیوں کا یہ حوصلہ دیکھ کر وہ دل سے خوش ہوتا ہے اور انہیں شاباشی دے کر کہتا ہے کہ مجھے تم پر گرو ہے۔ میں ایسے ہی بندوں کی توقع رکھتا تھا جو میرے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر میری دشمنوں کے خلاف بازو بن کر لڑیں، اور وہی چیز میں تم لوگوں میں دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری پچھلی بار وفاداری نے یہ ثابت کر دیا تھا مجھ پر کہ تم جیسے بھائی جب تک میرے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، میں اپنے دشمنوں سے ہرگز شکست نہیں کھا سکتا، چاہے وہ میرے سوتیلے بھائی ہوں یا ماما کے دشمن۔ اسی کے ساتھ وہ اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اب تم لوگ جا سکتے ہو، صبح تم تیاری کرو۔ اسی کے ساتھ تورسم خان کے تمام آدمیوں کے جانے کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تورسم خان آگے کی طرف بڑھتا ہے اور کھلے آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ وہ تاروں کی طرف دیکھتا ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ تورسم خان کا ماما وہاں پر ٹھہرا ہوتا ہے، جو کہ تورسم خان کی تمام باتوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ واہ واہ تورسم خان، آج تو تم نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ یہ بات مجھے معلوم ہو گئی کہ دولت خان ظفر وہ اپنی توہین بھول جائے گا اور معاف کر دے گا۔ نہ نہ نہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں۔ میں اپنی توہین کبھی نہیں بھولتا اور نہ ہی معاف کرتا ہوں۔ تمہاری نسل کا خون تمہاری نسل کے ہی ہاتھوں میں نے نہ بہایا تو میرا نام بھی ماما نہیں۔ میں تم لوگوں کا خون بہاؤں گا اور تم لوگ خود ہی ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میرا نام سردار زعفران نہیں۔ یعنی کہ تورسم خان کا ماما یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر یعنی کہ میں نے تم لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاتھوں خون نہ بہایا تو میرا نام بھی زعفران خان نہیں ہوگا۔ اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جس طرح تورسم خان اپنے آدمیوں کو تیار کر رہا ہے کہ صبح کے وقت شیر دل خان اپنے قافلے کے ساتھ ہمارے گاؤں سے گزرے گا، اسے تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ صحیح سلامت ہمارے گاؤں سے گزر جائے گا، کیونکہ وہ ہمیں بزدل سمجھتا ہے۔ لیکن جب صبح کا سورج نکلے گا اور وہ اپنے قافلے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف پہنچے گا اور جیسے ہی ہمارے گاؤں میں سے گزرے گا تو وہاں پر ہم اس پر اپنے آدمیوں کے ساتھ تابڑ توڑ حملہ کریں گے۔ اور یہ بات اس کے ماما کو پہلے سے ہی معلوم تھی اور اس کے ماما نے اسی لیے تورسم خان کو بھڑکایا ہے کہ اگر تم خود کو مرد کہتے ہو اور اگر تمہارے بھائی نے جو تمہاری بےزتی تمام لوگوں کے سامنے کی ہے، اگر تم اس بےزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اپنے سوتیلے بھائی شیر دل خان کو موت کے گھاٹ اتار دو اگر تمہارے میں مردانگی پائی جاتی ہے۔ یہ بات جب زعفران اپنے ماما کی یہ بات جب اس نے سنی تو اسے کافی غصہ آیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ضرور اپنے بھائی شیر دل خان سے بدلہ لے گا، اور یہ بدلہ اسے کافی بھاری پڑ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ صبح جب شیر دل خان اپنے قافلے کے ساتھ باہر نکلے گا اور اپنی منزل کی طرف جائے گا
तो बीच रास्ते में तोरसम खान अपने आदमियों के साथ अपने सौतेले भाई शेर दिल खान पर हमला करेगा। तो हमारा आपसे ये सवाल है कि क्या तोरसम खान इस हमले में कामयाब हो पाएगा या नहीं। जंजीर के आने वाली एपिसोड मजीद सस्पेंस से भरी हुई है, क्योंकि जिस तरह तोरसम खान ने अपने मामा के सामने अपनी मुर्दा माँ की कसम खाई है कि मैं अपनी मुर्दा माँ की कसम खाता हूँ मामा जान कि मैं अपने बड़े भाई सौतेले भाई शेर खान को नहीं छोड़ूंगा, और इसी तरह उसने ये कसम खाई है कि मैं तब तक सुख का सांस नहीं लूंगा जब तक मैं अपनी बेइज्जती का बदला ना ले लूं। और वो अपने मामा से कहता है कि मेरे दिमाग के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और मुझे किसी चीज की समझ नहीं आ रही। वो वाकया बार बार मेरे दिमाग में खून की तरह गर्दिश कर रहा है। जब पूरे गांव के मशरान मेज पर बैठे हुए थे और मुझे पर बातें चाड़ कर रहे थे, और उसी वक्त मेरे भाई ने मुझसे कहा कि उनसे माफी मांगी जाए। आप बताएं मामा, क्या वो ऐसा करता? दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चलें कि उसका मामा खुद उसके भाइयों के खिलाफ था, और इसी के साथ वो उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें वहां अपनी मर्दानगी जगानी चाहिए थी। क्या तुम वहां पर उन्हें मना नहीं कर सकते थे? इसी के साथ उसका मामा उसे कहता है कि अगर तुम्हें गुस्सा आता भी है तो वहां जाकर दिखाओ, यहाँ औरतों की तरह बार बार बातें क्यों कर रहे हो। ये सुनकर तोरसम खान का पारा मजीद बढ़ जाता है और वो गुस्से से आगे की तरफ बढ़ता है और मामा से मुखातिब होकर कहता है कि मामा, आप आग से खेल रहे हैं। आप जानते भी हैं कि मुझे कितना गुस्सा आया हुआ है, और आप बार बार उनका नाम लेकर मेरे गुस्से को मजीद भड़का रहे हैं। बेहतर यही होगा कि आप चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं। उसका मामा इस बात का फायदा उठाते हुए उससे कहता है कि मैं तो चुप हो जाऊंगा, क्या वो लोग चुप हो जाएंगे जिनके सामने तुम्हारे भाई ने तुम्हें जलील किया है, उनके सामने तुम्हें थप्पड़ रसीद किया है? क्या वो लम्हा तुम्हारे दिमाग से भूल जाएगा? क्या वो लोग ये वाकया भुला देंगे? नहीं, सारी जिंदगी तुम्हें वो लोग ये ताना देंगे कि तुमसे उन लोगों से माफी मंगवाई गई है जो कि सारी उम्र तुम्हारे वालिद के टुकड़ों पर पलते रहे हैं। क्या ये बात तुम बर्दाश्त कर पाओगे? मैं तो चुप कर जाऊंगा। वैसे भी मुझे तुम्हारे भाइयों ने कमजोर कह दिया है, लागर कह दिया है, और तुम्हारी मरी हुई माँ को उन्होंने नहीं छोड़ा। वो तुम्हारे सुतेले भाई तो हैं, लेकिन तुम्हें भाई कहते हैं, लेकिन हैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन। यहाँ तोरसम खान ये कसम खाता है और अपने मामा से कहता है कि मामा जान, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और इस बार फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं ये कसम खाता हूँ, और ये मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने सौतेले भाई से इस बात का बदला ज़रूर लूँगा। शेर दिल जब तक मेरे पंजे में नहीं आ जाता तब तक मैं सुख का सांस नहीं लूँगा। इसी के साथ ये तमाम बातें वो अपने मामा से कहकर वहाँ से रवाना हो जाता है, और पीछे उसका मामा कहता है कि हाँ, कई दिहाइयों से मैं खामोश रहा हूँ, और ये खामोशी शेर दिल के खानदान वाले या आगा के खानदान वाले समझते हैं कि मैं बुज़दिल हूँ, लेकिन मैं वक्त का इंतजार कर रहा था। अब इन्हीं का खून इन्हें काटेगा, इन्हें मालूम होगा कि मेरे साथ दुश्मनी करना कैसा है। इन्होंने मेरे खानदान को बर्बाद किया था, मेरे घर वालों को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे मजबूरन अपना आबाई गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग तान तान मुझे देकर
जीना उन्होंने मुझे, जीना भी मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद हम देखते हैं जहां तोरसम खान अपने आदमियों के साथ अपने मामा के डेरे पर मौजूद होता है। गहरी रात का मंजर होता है। यहाँ तोरसम खान कुछ देर के लिए तो खामोश रहता है और अपने आदमियों की तरफ मुसलसल देखे जा रहा होता है और उसके आदमी भी उसके हुक्म का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब तोरसम खान हमें बताएगा और हम इसके हुक्म पर अमल करेंगे। यहाँ हम आपको बताते चले कि ये आदमी इसके मामा के होते हैं और इसके मामा ने अपने तमाम आदमियों से कहा हुआ था कि तोरसम खान तुम्हें जहां भी कहे तुम लोगों ने जाना है। तोरसम खान को तुमने मना नहीं करना, क्योंकि इसका मामा जानता है कि अब बदले का यही वक्त है। अगर आगा के बेटों से बदला लेना है तो यही सही वक्त है, क्योंकि उसका भांजा यानी कि शेरदिल खान का जो सोतेला भाई था वो तोरसम था और तोरसम इसे मामा का भांजा था। इसी वजह से मामा ने अपने तमाम आदमियों से कहा हुआ था कि तोरसम खान तुम लोगों को जिस बात का भी हुक्म दे तुम लोगों ने कबूल करना है। और उसने ये बात अपने आदमियों से इस वजह से कही थी क्योंकि अब तोरसम खान का गुस्सा आसमान को छू रहा था और उसने अपने मामा के सामने ये अपनी मुर्दा माँ की कसम भी खाई हुई थी कि तब तक वो सुख का सांस नहीं लेगा जब तक अपने सोतेले भाइयों को मौत के घाट ना उतार दे। और इसी तरह वो अपने मामा से मुखातिब होकर कहता है, बहरहाल अपने आदमियों से वो कहता है कि मुझे ज़राए से मालूम हुआ है कि कल शेरदिल खान हमारे गांव से होकर गुजरेगा और मैं चाहता हूं कि कल शेरदिल खान का हमारे गांव से जैसे ही गुजर हो तो उसका काम तमाम कर देना चाहिए। ये सुनकर उसके आदमी तोरसम खान से कहेंगे कि तोरसम खान, क्या खबर पक्की है? सराय ने तुम्हें खबर पक्की ही दी है ना? ऐसा ना हो कि हम उस काफले पर हमला करें और उस काफले में कोई और मौजूद हो और एक बार फिर जिस तरह हमने पिछली बार तोरसम खान आपके हुक्म पर शेरदिल खान की फसलों को नुकसान पहुंचाया था तो हमारे कुछ आदमी शेरदिल खान के पंजे में जकड़े हुए थे और तुम्हारे मामा ने उन आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। क्या इस बार खबर पक्की है ना? क्योंकि इस बार हमारे खून में अब सब्र नामी मादा खत्म हो चुका है। अब हम शेरदिल खान से बदला लेना चाहते हैं। अगर इस बार खबर पक्की ना हुई तो शेरदिल खान हमारे तमाम कबीलों को जलाकर राख कर देगा और ये मौका हम अपने हाथ से हरगिज जाने नहीं देंगे। हम उस पर ऐसे ताबड़तोड़ हमला करेंगे कि शेरदिल खान सुबह का सूरज तो देखेगा लेकिन डूबता हुआ सूरज नहीं देखेगा। इसी के साथ तोरसम खान अपने आदमियों से कहता है कि इस बार खबर मजबूत खबर है। मुझे मालूम हुआ है कि शेरदिल खान कल हमारे गांव से होकर गुजरेगा और इस बात का हमने फायदा उठाना है। उसे हमने मौत के घाट उतारना है। तुम लोगों ने तब तक पीछे नहीं हटना जब तक कि ये बात कन्फर्म ना हो जाए कि शेरदिल खान मर चुका है। हाँ, मेरी ये बात याद रखना। तब तक तुम लोगों ने उस पर हमला, ताबड़तोड़ हमला जारी रखना है। ये सुनकर उन आदमियों में से एक आदमी शेरदिल खान का नहीं बल्कि तोरसम खान से मुखातिब होकर कहता है कि तोरसम खान, तुम्हें परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। तुम्हारे आदमियों के बाजुओं में अभी इतनी ताकत मौजूद है कि शेरदिल खान पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा और शेरदिल खान का काफिला तब पीछे हटने पर मजबूर होगा जब तुम्हारे आदमी शेरदिल खान को मौत के घाट उतार देंगे। ये बात तुम याद रखना, ये बात मत भूलना
तोरसम खान कि तुम्हारे मामा के आदमी तब तक अपने दुश्मन को नहीं छोड़ते जब तक दुश्मन की जान से सांस ना निकल जाए। ये बात तुम्हें अच्छी तरह मालूम है और पिछले हमले में हमने तुम्हारे साथ वफादारी दिखाई है। बस इस बार हम ये चाहते हैं कि अगर हम शेर दिल खान के काफले पर हमला करने जा रहे हैं तो खबर पक्की होनी चाहिए कि इस काफले में शेर दिल खान भी मौजूद होगा। हमारी लाशें चाहे हमारे घर वालों तक पहुंचा दी जाएं, शेर दिल खान हमारे टुकड़े कर दे, लेकिन तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम शेर दिल खान को मौत के घाट ना उतार दे। ये खबर सुनकर तोरसम खान आगे की तरफ बढ़ता है और अपने आदमियों का ये हौसला देखकर वो दिल से खुश होता है और उन्हें शाबाशी देकर कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है। मैं ऐसे ही बंदों की तवक्को रखता था जो मेरे साथ शाना बशाना होकर मेरी दुश्मनों के खिलाफ बाजू बनकर लड़े, और वही चीज मैं तुम लोगों में देख रहा हूं। तुम्हारी पिछली बार वफादारी ने यह साबित कर दिया था मुझ पर कि तुम जैसे भाई जब तक मेरे साथ कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, मैं अपने दुश्मनों से हरगिज शिकस्त नहीं खा सकता, चाहे वो मेरे सौतेले भाई हों या मामा के दुश्मन। इसी के साथ वो अपने आदमियों से मुखातिब होकर कहता है कि अब तुम लोग जा सकते हो, सुबह तुम तैयारी करो। इसी के साथ तोरसम खान के तमाम आदमियों के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि तोरसम खान आगे की तरफ बढ़ता है और खुले आसमान की तरफ देखने लगता है। वो तारों की तरफ देखता है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर हम देखते हैं कि तोरसम खान का मामा वहां पर ठहरा होता है, जो कि तोरसम खान की तमाम बातों को सुन रहा होता है। वो कहता है कि वाह वाह तोरसम खान, आज तो तुमने इस बात को साबित कर दिया। ये बात मुझे मालूम हो गई कि दौलत खान जफर वो अपनी तौहीन भूल जाएगा और माफ कर देगा। ना ना ना, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी तौहीन कभी नहीं भूलता और ना ही मुआफ करता हूँ। तुम्हारी नस्ल का खून तुम्हारी नस्ल के ही हाथों मैंने ना बहाया तो मेरा नाम भी मामा नहीं। मैं तुम लोगों का खून बहाऊंगा और तुम लोग खुद ही एक दूसरे का खून बहाओगे। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम सरदार जाफरान नहीं। यानी कि तोरसम खान का मामा ये कह रहा होता है कि अगर यानी कि मैंने तुम लोगों का एक दूसरे के हाथों खून ना बहाया तो मेरा नाम भी जाफरान खान नहीं होगा। इस बात से हमें ये मालूम होता है कि आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जिस तरह तोरसम खान अपने आदमियों को तैयार कर रहा है कि सुबह के वक्त शेर दिल खान अपने काफले के साथ हमारे गांव से गुजरेगा, उसे तो ये मालूम होगा कि वो सही सलामत हमारे गांव से गुजर जाएगा, क्योंकि वो हमें बुज़दिल समझता है। लेकिन जब सुबह का सूरज निकलेगा और वो अपने काफले के साथ अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेगा और जैसे ही हमारे गांव में से गुजरेगा तो वहां पर हम उस पर अपने आदमियों के साथ ताबड़तोड़ हमला करेंगे। और ये बात इसके मामा को पहले से ही मालूम थी और इसके मामा ने इसीलिए तोरसम खान को भड़काया है कि अगर तुम खुद को मर्द कहते हो और अगर तुम्हारे भाई ने जो तुम्हारी बेइज्जती तमाम लोगों के सामने की है, अगर तुम उस बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो तो अपने सौतेले भाई शेर दिल खान को मौत के घाट उतार दो अगर तुम्हारे में मर्दानगी पाई जाती है। ये बात जब जाफरान अपने मामा की ये बात जब उसने सुनी तो उसे काफी गुस्सा आया और उसने ये फैसला किया कि वो
ضرور اپنے بھائی شیر دل خان سے بدلہ لے گا، اور یہ بدلہ اسے کافی بھاری پڑ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ صبح جب شیر دل خان اپنے قافلے کے ساتھ باہر نکلے گا اور اپنی منزل کی طرف جائے گا تو بیچ راستے میں تورسم خان اپنے آدمیوں کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی شیر دل خان پر حملہ کرے گا۔ تو ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا تورسم خان اس حملے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟